Hello students, very warm welcome to all of you in this session. My name is Anubha Gaur, your chemistry master teacher at Vedantu. And students, I welcome you all and wishes for all your good health. And I hope all of you are taking care of yourself because you know that situation is not at all better. तो it's good कि हम अपना ध्यान रखें. Okay, so please take care of yourself. बात करते हैं सेशन की. व्हाट मैम इज गोइंग टू टीच इन दिस सेशन. तो मेरे ICSE स्टूडेंट्स, योर अनुभा मैम इज बैक. डोंट वरी, आई नो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है सेशन बिकॉज सब लोग घर से काम कर रहे हैं एंड समटाइम थिंग्स डजंट वर्क आउट द वे वी रियली वांटेड टू. तो हो जाता है. ओके, so are you all ready to have this session with me? Session number 4. I hope you have already seen session number 1, 2 and 3 क्योंकि ये session उसी continuity में हम करेंगे. The session number 3 that I have taken, we talked about bases. In what sense? Classification of bases, how you define bases and all. This session is like how you can prepare bases. Apart from that, what kind of a properties bases are having in terms of physical and chemical properties. And please bear with me in terms of my voice. Doesn't sound that great, right? Because ma'am's throat is not at all well. But just for all of you, I thought of not missing any session. Not more than that. Yeah, I know. Students, आगे बढ़ने से पहले I really want to tell you certain things which I think that is super important कि आप सबको पता हो, all the new students specifically, कि how this platform works. So students, this is a time of online education, you know it pretty well कि अभी यही future होने वाला है. So why not we take the best advantage of the same. But issue ये है that you guys face so many problems. So is there any platform which is properly working for the same और जिसके पास आपकी सारी problems का solution हो? Problems like doubt solving. मैम हमारे doubts ही नहीं solve होते, whether we talk about our school classes, whether we talk about our tuition classes. तो जब भी chapter पढ़ने बैठते हैं हमें बहुत सारे doubts आते हैं, but there is no one who can solve our doubts. And सब किसी न किसी time पे जब हम free होते हैं, other people are busy, our teachers are busy and vice versa. तो बहुत प्रॉब्लम होती है हमें. नोट्स की बात करें मैम, मेरा 90% टाइम चला जाता है नोट्स लिखने में. एंड व्हेन आई ट्राई टू रीड आफ्टर राइटिंग ऑल द नोट्स इन द सेशन, बाद में मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ ये मैंने ही लिखा था या लिखा तो मैंने था बट अब मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है. आई होप दैट हैपन्स विद सम ऑफ यू. अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी लोग क्या प्रॉब्लम फेस करते होंगे कि जिनको प्रॉपर आइडिया नहीं है हाउ टू मेक नोट्स एंड वो लिख लेते हैं बस जैसे तैसे. बट इफ दे यूज द सेम काइंड ऑफ अ लैंग्वेज इन देयर एग्जाम, टीचर इज लाइक okay, this is not the right way. Whatever you're writing, that could be better if you want to score full marks. So yeah, कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसमें हमें प्रॉपर नोट्स मिले हर एक टॉपिक के कि लिखना कैसे है एग्जाम में. अपार्ट फ्रॉम दैट, टेस्ट एंड असाइनमेंट. क्यों ना एवरी सेशन के बाद हमें एक असाइनमेंट मिले सो दैट वी कैन मेक श्योर या वी आर ऑन द राइट पाथ और जितना भी क्लास में कराया गया हमें वो सब समझ आ गया है. एंड हर 15 डेज में हमारा टेस्ट भी हो टू इंश्योर आर ग्रोथ. अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं. बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक JSTSC, NTSC, ओलंपियाड, KVPY, JEE नीट एंड ऑल. तो जहाँ पे हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन कर सके. Basically choice of schedule also, it's like the biggest problem students faced कि मैम जब हम फ्री होते हैं कोई इंस्टीट्यूट की टाइमिंग मैच नहीं करती और जब भी हम सोचते हैं कि हाँ चलो ये टाइम फ्री है, वी आर लाइक इन दैट डायलेमा व्हाट टू डू. तो स्टूडेंट्स, क्यों ना आपकी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाए. सो व्हाट्स दैट प्लेटफॉर्म दैट कैन डू द सेम और आपका लैंग्वेज बैरियर भी ख़त्म कर दे, वेदर यू आर comfortable in Hindi or in English. So students, you all have the answer, like one step solution for all your problems with some extra bonuses also, just like attending unlimited live classes. अगर आप free हो, you can attend 7-9 classes also. And if you have less time and you're not able to manage it well with your school, you can attend 1 to 2 classes also, all up to you. Micro course like chapter based course कि मैम ये वाला जो चैप्टर है मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ है
So can I attend this chapter again so that I can make sure, yeah, all of my doubts are clear? आप उस चैप्टर के माइक्रो कोर्स को, चैप्टर बेस्ड कोर्स को भी जितनी बार चाहो पढ़ सकते हो. Isn't it amazing? और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. क्रैश कोर्स में रिविजन कर सकते हो. After every session, we will send you a performance report also कि आपने throughout the session कैसा काम किया. Suppose you were active throughout the session, so there will be a report कि हाँ आप पूरे session में active रहे, and among 10 quiz question, 8 question you have given absolutely right, so well done. This is your percentage of the class कि आपने कैसे किया. So isn't it amazing कि आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हो कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो. And apart from that, personalized attention in the session also in terms of your master teachers and the class teachers who also join us to help you out in terms of solving your doubts. So students, don't you think this is such an amazing opportunity that you guys are having? I wish मैं अपने टाइम पे ये सोच पाती, but at my time internet just, you know, we had the access in college and it's like the 2G time. और हम स्ट्रगल कर रहे होते थे कि हाँ कुछ तो खुले इन दैट 2G वर्ल्ड. या दैट हैपेंस. इसका मतलब ये नहीं कि मैम बहुत पुरानी है. ओके, सो यू हैव टू विजिट दिस लिंक. ये विजिट करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिलेगा. You have to select your grade, select your target, definitely ICSE 2021, और उस पर क्लिक करो गेट सब्सक्रिप्शन. जैसे ही सब्सक्राइब करोगे यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन फॉर 1 month, और 1 month जो आपको 4,000 से 2,699 में मिल रहा था, you will get extra discount with the coupon code AGPRO, which is the coupon code of your Anubha ma'am. Okay, अगर अप्लाई किया you will get the same course in just 2294. If you want to see that how Vedantu works, 1 महीने का ट्रायल ले सकते हो. Apart from that, 3 months के लिए extra discount in a way that after applying AGPRO Anubha ma'am's code, you just have to pay 1,983 rupees per month. Isn't it amazing? And बहुत ज़्यादा expensive नहीं है, because you are getting the access of each and every subject, which is very much important, like English SST also. Apart from that, entire mathematics and science like physics, biology, mathematics by 3 different teachers who are the expert of the same. Okay, and the best one is 6 months. Trust me, because after applying this code you are getting it just for 1,629 rupees per month. 1,629, isn't it a good deal? Isn't it a good deal, right students? 1,629 rupees per month is not that much. देखो कि आप एक दिन में हार्डली शायद 70-80 रुपीज स्पेंड कर रहे हो, विच इज नॉट मच, एंड यू आर गेटिंग एवरीथिंग, एंड जस्ट 2 steps and your solution of all the problem is here. That is, visit the code. Apart from that, that is, visit the link and apply the coupon code AGPRO. AGPRO, Anubha got pro subscription. All right students, so this is about our platform. Let me tell you right now that what you all are going to learn in this session, what are the learning objectives जिसको आपको टिक करना है. It's like check. Method of preparation of bases and chemical properties also. So students, I hope you are also excited like the same way. And on this note, let's get started, right? All right. So सबसे पहले बात करेंगे how we can prepare bases. But before that, let me remind you from the last session what basically are bases. A very simple definition is generally metal hydroxides are your bases. और ऐसा क्यों? Because they releases OH ion in water, right? तो bases का one of the main identification. OH ions, hydroxyl aqueous ions in water. Apart from metal hydroxide, my metal oxide and my metal carbonate, bicarbonate are also basic in nature. Metal carbonate, my metal bicarbonate, they are also basic in nature. But what are like the common ones? Common ones की अगर मैं बात करूँ तो example number 1 and 2 जो मैंने लिखा, you can consider the same. That metal hydroxide and metal oxides are very common example of bases. All right. So let's talk about the preparation method, how to prepare it. In front of you, what you can see, I've taken a magnesium ribbon and I'm burning it in presence of what? Definitely I need to burn it with air.
So whenever you burn a magnesium piece in air, what is happening? Look at this. The gas jar is filled with oxygen. I've put my magnesium ribbon after showing combustion to it, after giving ignition temperature to it, ताकि वो burn हो सके. And what it will give you, students, a substance called as magnesium oxide, none other than magnesium oxide. पहचान क्या है, कैसे पहचानोगे? इट विल गिव यू अ ब्राइट वाइट डेजलिंग फ्लेम. तो जब भी ये एक्सपेरिमेंट करो, प्लीज ग्लासेस पहनना मत भूलना, बिकॉज इट कैन हार्म योर आईज. ये क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? आई नो दैट यू नो इट, that my magnesium oxide is pretty basic. Okay, let's talk about this example, that how we can prepare the same with the help of metals. With the help of metal, whenever you burn metal in air, you get metal oxides, and they are pretty much basic in nature. Wonderful. So let's talk about some more and more examples, students, and you can prove the nature of the same also. I have taken a piece of sodium, very dangerous, very reactive, and I'm burning it in presence of oxygen. What basically it is getting to you, what basically it gives you? Sodium react with oxygen, definitely you will get sodium oxide with tremendous amount of energy release. It's an exothermic reaction because they are pretty reactive metals. मैं इसको कैसे प्रूव करूंगी that this is basic? अगर मुझे उसका नेचर प्रूव करके दिखाना है in laboratory, I'll take the same and I'll put it in water. I'll take my oxide and put it in water, students. Magic will happen. Your sodium will react with my OH. कैसे? I have 2 sodium and I have 2 hydrogen and 2 oxygen. So it's like you are going to get 2 NaOH. Aqueous solution of NaOH, which you know that's a pretty alkaline in nature. So alkaline solution क्या होते हैं? Basic होते हैं. I can prove if you take a red litmus paper and put it in the same, it will turn blue. और ये पहचान है that yes, that's what I can call as a base. All right. Same with calcium oxide you're going to get, potassium oxide you get. They all are pretty basic in nature. All right students, this is like very easy to understand. अब बढ़ते हैं आगे. चलो, तो अब बढ़ते हैं with all the possible examples. Second method how to prepare bases is what? By the action of water on reactive metal, जो मैम ने somehow आपको पहले ही बता दिया है. और वो कैसे? If you take your highly reactive metal and put it in water, you will get your metal hydroxide, and they are kind of alkaline nature, alkaline solution आपको मिलेगा. So देखो, potassium with water, what exactly it is giving you? You have to give the reaction in the cold water. Okay, so potassium with KOH, it's just like displacing hydrogen and taking its position. You will get KOH with hydrogen gas released. In the same way, you will get sodium hydroxide and calcium hydroxide, and hydrogen gas is also going to release. कैसे detect करोगे? It will give you a pop sound whenever you take any burning candle or matchstick near it. Got it, students? तो ध्यान रखना, अगर मैं अपनी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करती हूँ, वाटर वुड बी मे बी hot water or cold water, I'll get my metal hydroxide, क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ रिएक्टिव मेटल के साथ पॉसिबल है. When I talk about my moderate reactive metal and all, so वो रिएक्ट करती है सिर्फ स्टीम के साथ, एंड स्टीम के साथ आपको मिलता है मेटल ऑक्साइड. So metal whenever react with steam, you will get your metal oxide, pretty basic in nature. So you know now how to prepare bases with one more method. अब बात करते हैं method number 3. By the action of water on soluble metal oxide. Soluble metal oxide कौन से होते हैं students? Again I'll tell you about alkali और alkaline earth metal. क्योंकि इसके जो ऑक्साइड बनते हैं, whenever you put it in water, they'll be soluble. That's why we call them alkali metal and alkaline earth metal. तो बेसिकली यही बात है जो आपको पता होनी चाहिए. देखो जरा एग्जाम्पल के तौर पे. सो जनरली दीज आर योर alkali metal oxide and these are your alkaline earth metal oxide, जैसा मैम ने बताया था. Whenever you put it in water, metal oxide with water gives metal hydroxide. So it's like these are also basic. You can get its hydroxide also, alkali also, अगर आप उसको water के साथ react कराते हो. Reaction is very simple. It's like HOH
and I have 2 potassium with 1 oxygen, 2 potassium, and I have 2 OH. So it's like I am getting 2 KOH, 2 potassium hydroxide molecule aqueous solution. Same, I'll get NaOH, same I get calcium hydroxide. Do not get confused in the valency part because that's very much important. कैल्शियम का वैलेंसी इज 2, OH का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कंफर्म कर सकते हैं. सेम यहाँ देखो, रीजन क्या है, वेन एवर यू मूव डाउन इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स यू सी रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग, सो यू हैव टू गिव सम ऑफ द विग्रस कंडीशन टू द सेम. यानी कि नॉर्मल वाटर से मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करेगा. आई हैव टू टेक द वाटर इन द हॉट फॉर्म, हॉट वाटर लेंगे, देन ओनली रिएक्शन इज पॉसिबल to give magnesium hydroxide, MgOH twice. I hope this method is pretty much clear. This is the third method जिसमें हम metal hydroxide बना रहे हैं active metals के. Okay? अब बात करते हैं एक डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप के रिएक्शन से भी पॉसिबल है, जिसको मैं डबल डीकम्पोजिशन भी बोल सकती हूँ. I am going to take 2 compounds, they are going to decompose and they'll exchange their ions to give us 2 new product, and definitely one will be base, that's why I am studying the same. Aqueous solution of salt with the base precipitate to respective metal hydroxide. मैम ये क्या बोला आपने, अभी एग्जाम्पल के साथ मैम आपको बताएगी. Whenever you take a base that is more of like alkali, means water soluble, अगर आप उसको किसी मेटल सॉल्ट में ऐड करते हो और वो मेटल सॉल्ट हैवी मेटल का है इन जनरल, तो क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स एंड यू आर गोइंग टू गेट वन अदर टाइप ऑफ हाइड्रोक्साइड, वन अदर टाइप ऑफ बेस इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट. यानी कि ये सिर्फ बेस है, मैं इसको एल्कली नहीं बोल सकती. व्हाई आई कांट कॉल इट एल्कली स्टूडेंट्स, बिकॉज एल्कलीज आर वाटर सोल्यूबल बेसिस. ये वाटर सोल्यूबल होते तो प्रेसिपिटेट आउट होते? बिल्कुल नहीं, they can't precipitate it out. So do remember it when I take my metal salt like iron chloride, copper sulfate, aluminium chloride and I'm reacting it with alkali water soluble bases. तो क्या होता है students, exchange of ions, iron के साथ OH जाएगा, sodium के साथ chlorine जाएगा. तो I am getting new kind of a basis of these metals जो metal salt form में present थे. iron hydroxide, कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सबका अलग अलग प्रेसिपिटेट होता है एंड दे सेटल डाउन एट द बॉटम. Isn't it amazing reaction? डबल डीकम्पोजिशन टू बी वेरी ऑनेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का रिएक्शन है. ओके तो जैसे ही मिक्स करोगे यू कुड सी द प्रेसिपिटेट. ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट हमें मिल रहे हैं जो कि वाइट जेलेटिनियस लगते हैं हमें. Okay, wonderful. Let's talk about number 5 by the action of oxygen on metal sulfide. यानी कि क्या करेंगे दोबारा, मेटल सल्फाइड इज गोइंग टू कन्वर्ट टू मेटल ऑक्साइड. और शायद मेटलर्जी में मैम इसको दोबारा पढ़ाएगी बिकॉज दिस रिएक्शन इज हेल्पिंग अस टू गिव यू मेटल ऑक्साइड फ्रॉम सल्फाइड. इसका एक प्रॉपर नेम होता है वहाँ पे, आई विल टीच यू, रोस्टिंग. राइट, क्या फनी नेम, बट हाँ रोस्टिंग बोलते हैं. When you have your metal sulfide, generally ये जिंक का एक और है, जिंक ब्लेंड बोलते हैं इसको, बिकॉज जिंक जनरली सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट होता है. Whenever you heat it in excess of air, what will happen? My zinc is like, I will combine with the oxygen because sulfur has a very good affinity towards oxygen और वो एक गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा. It's like I am happy. तो सल्फर कंबाइंड विद ऑक्सीजन SO2 गैस की फॉर्म में बाहर जा रहा है एंड द गुड पार्ट इज आई एम गेटिंग ओनली 1 प्रोडक्ट, सो आई एम वेरी हैप्पी. मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा. आई टुक माई सल्फाइड, आई हीट इट, इट कन्वर्टेड टू ऑक्साइड फॉर्म विच इज़ प्रीटी गुड क्योंकि मेरा पर्पज सॉल्व हो गया. वाई? आई गॉट माई मेटल ऑक्साइड. दे आर प्रीटी मच बेसिक, दैट्स व्हाट मैम इज टेलिंग यू. Amazing. याद रखना, you can see it on the replay mode also. You can make notes also, and the entire file which is super important, you will get the link in the description box. All right. एक और एग्जाम्पल, ये पता है इसका नाम क्या है? लेड सल्फाइड, ओर ऑफ लेड, गैलीना. Awesome, right? Okay. When it react with oxygen, again you will get lead oxide, basic. To be very honest, ये वैसे थोड़ा एम्फोटेरिक नेचर का होता है. बेस और एसिड दोनों प्रॉपर्टी शो करता है. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. एक और एग्जांपल, बाय डीकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट एंड इट्स लाइक यू आर गोइंग टू टेक, बेसिकली दैट्स एन एग्जांपल ऑफ बेसिक सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट. अगर मैं इसको हीट कर दूंगी, द रिएक्शन इज इन अ काइंड ऑफ
थर्मल डीकम्पोजिशन, मैंने क्या किया, थर्मल डीकम्पोजिशन, मैंने बस हीट कर दिया और वो डीकम्पोज हो गई। और क्या दे रहा है स्टूडेंट्स, कार्बोनेट जहां भी दिखे याद रखना वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी डेफिनेटली CO2 गैस। तो वही किया, जैसे ही मैं इसको हीट करती हूँ CO2 इज लाइक आई एम गोइंग आउट बिकॉज आई एम अ गैस, आई एम मोर फ्री, and my calcium combined with that rest of oxygen to give calcium oxide. Isn't it amazing? Yes. And why this is like a reaction to prepare base? Because calcium oxide is definitely basic. Okay, but do let me know in the comment section whether your calcium oxide and one more example, copper oxide, they are just basic in nature or they are alkali also. Is there one alkali, one basic? जो भी है, do let me know in the comment section. I have copper carbonate this time again. When I heat it, carbonate, याद रखना, very important, one of the product will be definitely CO2 with one of the product, that's your base, copper oxide, metal oxide, wonderful, black color का होता है ये, okay, very nice। चलो अब कार्बोनेट हो गया, अब बात करते हैं और एग्जाम्पल की कि कार्बोनेट के अलावा अगर मेरा नाइट्रेट सॉल्ट हुआ then also I can get my metal oxide. Do remember it, it's not like every metal nitrate will decompose to give metal oxide. कभी कभी कुछ change of reaction भी होता है, कुछ metal nitrates decompose नहीं करते to give these kind of a product क्योंकि वो already stable form में होते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, मेरे पास कैल्शियम नाइट्रेट था, मैं जैसे हीट करूंगी, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ लेड नाइट्रेट ऑल्सो, जिंक नाइट्रेट ऑल्सो, जैसे हीट करोगे याद रखो यू आर हीटिंग इट इन एयर, राइट? सो मेटल विल ऑलवेज गिव यू मेटल ऑक्साइड। सो मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और ये वाला जो पार्ट है ये डीकम्पोज करेगा टू गिव यू स्टेबल सब्सटेंसेस जो कि फ्री फॉर्म में निकल भी जाए और आई विल गेट ओनली सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ मुझे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी एंड यू नो व्हाट इट्स कलर, इट्स रेडिश ब्राउन इन कलर। और उसके अलावा जो दूसरी गैस मिलती है वो ऑक्सीजन। देन यू कैन कंफर्म द रिएक्शन ऑल्सो कि मैं मेटल नाइट्रेट से रिएक्शन कर रही हूँ बिकॉज वन ऑफ द प्रोडक्ट इज NO2 एंड NO2 इज लाइक रेडिश ब्राउन गैस कमिंग आउट। और ऑक्सीजन को कैसे पहचानोगे, ऑक्सीजन के पास अगर मैं फ्लेम लेके जाऊंगी, योर फ्लेम विल लाइक शो मोर ब्राइटनेस, वो ज़्यादा ग्लो करेगी, राइट? और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन ज़रूरी होता है कंबशन के लिए। सो नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट को बर्न करते हो, आई मीन हीट करते हो, यू विल गेट मेटल ऑक्साइड, NO2 गैस एंड ऑक्सीजन गैस। माई प्रॉब्लम इज सॉल्ट। आई होप इट्स सॉल्ट। यस, जैसा कि मैंने बताया, उसके अलावा अगर मैं कार्बोनेट्स की बात करूं, ये भी मैम ने बताया था, कार्बोनेट को हीट करते हो CO2 निकलेगा और मेटल ऑक्साइड। But when I talk about sodium and potassium carbonate, they don't decompose on heating because they're like we are pretty much okay. हम तो इस फॉर्म में खुश हैं, स्टेबल है, ओके? तो ये जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं करती। इफ आई टॉक अबाउट alkali metals carbonate, stable carbonates है ये, all right. And if I talk about sodium and potassium nitrate also, same happen with them. So do remember it. If I talk about my alkali metals, their carbonate and their nitrate doesn't perform this part that they don't give you metal oxide. मतलब वो बेस मुझे नहीं देते, okay? याद रखना, notes are very much important to understand. Now I have this that soluble sodium hydroxide अगर मुझे प्रिपेयर करना है, मैं कैसे प्रिपेयर कर सकती हूँ? बहुत फेमस रिएक्शन है, जैसे लैब में प्रिपेयर करते हैं इसको by heating sodium carbonate with slaked lime. Look at this reaction. My sodium carbonate can't just heat it and I'll get some metal oxide. अगर उसको calcium hydroxide के साथ, इसी को हम बोलते हैं slaked lime, जब आप हीट करोगे तो क्या मिलता है? Look at this. It's again like a exchange of reaction, exchange of ions. Sodium is like I'll go with OH, I'm pretty much happy. Calcium is like okay, I'll go with CO3, I'm fine with it. So you will get your NaOH, which is an alkali, water soluble base, because sodium का base है, sodium, potassium, alkali metals है and they can dissolve in water and will give you alkali. और दूसरा गया मेरा कार्बोनेट की फॉर्म में. It's like again an example of double decomposition only. To prepare NaOH, please do not forget it. It's very very important.
मैम इज जस्ट टीचिंग यू. अगर फाइल डाउनलोड कर लोगे ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज एवरी नोट्स यू कैन हैव एंड रिवाइज इट व्हेन एवर यू वांट. अब एक एग्जाम्पल है टू प्रिपेयर अमोनियम हाइड्रोक्साइड. और अमोनिया जो होता है पानी में बहुत अच्छे से सेल्यूबल होता है एंड यू कैन ईजिली गेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो ये तो बहुत इजी एग्जाम्पल है. यू टेक वाटर, यू विल पुट अमोनिया गैस विद सम ऑफ द प्रेशर, और जो हीट रिलीज करती है तो हम कूलिंग बार यूज़ करते हैं आसपास उसको ठंडा करने के लिए. तो दो कंडीशन चाहिए मुझे अमोनिया को वाटर में सोल्यूबलाइज कराने को, मिक्स कराने को. पहला हाई प्रेशर, दूसरा लो टेम्परेचर. ओके, ये दोनों कंडीशन प्रोवाइड करो, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी. आई विल गेट माई अमोनियम हाइड्रोक्साइड. और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? डेफिनेटली बेस, दैट टू वाटर सोल्यूबल. वाटर सोल्यूबल बेस है. इजंट इट अमेजिंग? विंडो क्लीनर की तरह भी सोल्यूशन को यूज करते हैं. ग्रेट, राइट, बहुत अच्छे. एंड द बेस्ट पार्ट इज प्रिपरेशन बहुत सारी थी बट हमने सारी पढ़ ली. ग्रेट, राइट. ओके, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की कि ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है मेरे पास जो मुझे पढ़नी चाहिए. डेफिनेटली बेसिक की, बेस की बात करते हैं. दैट दे हैव शार्प एंड बिटर टेस्ट एंड यू आर गोइंग टू मेक सच काइंड ऑफ अ फेस. ओह माय गॉड, अगर गलती से सोप को नहाते वक्त मुंह में चला गया, यू नो हाउ इट टेस्ट pathetic. That doesn't mean I've tried it, it just I'm telling you. Okay, apart from that they have the color of indicators, means बेस को आई कैन आइडेंटिफाई बाय द चेंज इन द कलर ऑफ इंडिकेटर ऑल्सो. अगर मैं लिटमस सोल्यूशन की बात करूँ, रेड टू ब्लू, रेड हो जाता है ब्लू, हमें भी पता है ये. अगर मैं ऑरेंज की बात करूँ वो हो जाता है येलो. मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज होता है डेफिनेटली, और इसको ऐसे भी याद कर सकते हो रॉय, लाइक यूजिंग अ एनालॉजी. ऑरेंज इज द एक्चुअल कलर. अगर पीएच स्केल याद हो, लेफ्ट में हम लिखते हैं एसिड और राइट में लिखते हैं बेस. तो बेस का कलर येलो, एसिड का कलर रेड. गुड वे टू रिमेंबर इट, राइट. सो येलो इन व्हाट? येलो एक फेवरेट सॉन्ग भी है मेरा. डू लेट मी नो मैम कौन से सॉन्ग की बात कर रही है कमेंट सेक्शन में. ओके, फिनोफ्थलीन की अगर मैं बात करूं, कलरलेस होता है बट डेफिनेटली इट विल शो द सेम काइंड ऑफ अ पिंक कलर एंड इट लुक्स सो अमेजिंग, सो अमेजिंग. तो मैम पिक्चर वे में भी दिखा सकती है ताकि आपकी मेमोरीज में ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहे. ये देखो, रेड लिटमस हो जाता है ब्लू इन योर सोल्यूशन, इन योर बेसिक सोल्यूशन. फिनोफ्थलीन का कलर चेंज देखो, फ्रॉम योर कलरलेस इट विल शो यू पिंक कलर. एसिड में सेम कलर रहता है, वी विल कॉल इट कलरलेस ओनली. और बेस में हो गया पिंक कलर. अमेजिंग, राइट. बहुत अच्छा सा पिंक कलर आता है. और जैसा मैम ने इंडिकेटर में बताया, इट विल गिव यू अ येलो कलर, ऑरेंज टू येलो. अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, दैट दे आर सोपी टू टच. यू नो इन लैबोरेटरी वी यूज टू हैव NaOH पैलेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पैलेट्स. ओके, पैलेट्स मतलब छोटी छोटी गोलियां टाइप में. ओके, एंड वी हैव टू मेक इट सोल्यूशन. तो जैसे उसको डाल के हम बीकर में रखते थे, गलती से टच हो गया एंड यू इट लुक्स लाइक सो स्लिपरी. रीजन पता है क्या होता है? एल्कली का काम होता है कि वो हमारे ऑयल से रिएक्ट करते हैं और वो स्लिपरी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं. कभी देखा होगा आपने, ये जब भी आप सोप रब करते हो उसके बाद आपको अपनी स्किन ड्राई लगती है. रीज़न यही है क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और तभी ये सोपी अपीयरेंस शो करता है, स्लिपरी अपीयरेंस शो करता है. अमेजिंग, राइट. बट अभी तो बहुत ज़रूरी है, जितना पॉसिबल हो अपने हैंड वॉश करो. इट्स लाइक ओके, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा सकते हो. ओके, वट एवर आई टोल्ड यू दैट्स द सेम थिंग रिटन हियर, दैट रिएक्ट्स विद द ऑयल टू फॉर्म दैट सोप and it's like skin will become dry. Conscious नहीं होने का, करना है. ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज के और एग्जाम्पल बात करें, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट का मतलब I can take the example of NaOH, I can take the example of KOH. Basically alkali ज़्यादा strong electrolyte होते हैं. That whenever I'm going to take it and will try to pass electricity, अपना cathode anode और proper arrangement complete करके बल्ब लगा के इसके आयॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं. इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जब इलेक्ट्रिसिटी पास करे, दे कैन डिसोसिएट इनटू आयॉन्स एंड कैन स्टार्ट डिपॉजिटिंग और रिस्पेक्टिव कैथोड एंड एनोड. और जो बल्ब लगा है वो क्या करेगा? ग्लो. ये शो करता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है.
They are also corrosive in nature. Isn't it amazing that they are corrosive in nature also? Like मैं सिर्फ बात कर रही हूँ स्ट्रॉन्ग एल्कली की. ये जब भी आपके स्किन के ऊपर गिरते हैं तो क्या हो सकता है, आपकी स्किन को हार्म कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग एल्कली का मतलब मैं स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सोल्यूशन की बात करूँ, KOH सोल्यूशन की बात करूँ, इन दोज एग्जाम्पल्स, राइट. अब बात करते हैं वन मोर टाइप, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी. आई होप द रेस्ट टू पार्ट इज सुपर डुपर क्लियर इन योर माइंड. कैसे बनाएंगे और क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं. तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के पोर्शन की, like how your bases can react with other chemicals and can give you some new substances. So are you familiar with this carbonate and CO2 things? We have done it so many times. एक बात याद रखना, whenever you see metal carbonate and when it has to decompose, it will give you CO2 as one of the product, and it's like a vice versa thing. When you react your metal substance with CO2 gas, one of the product that you're going to achieve is your metal carbonate. Isn't it like obvious thing? So यही हुआ यहाँ पे. I have taken my alkali, और alkali को आप जैसे ही react करवाओगे CO2 गैस के साथ, तो देखो क्या हुआ, NaOH, okay, with your CO2. So it will give you Na2CO3, और साथ में क्या मिला मुझे, ये 2 नहीं है यहाँ पे, साथ में क्या मिला, HOH, that is my water. Isn't it amazing? That means my alkali absorbs CO2. Alkali मतलब I'm talking about your highly reactive metal hydroxide. Alkali, water soluble base. They absorb CO2 and they give metal carbonate. Easy? समझ आया? What about my reaction of bases with acids? Pretty much easy reaction. 7th class से पढ़ते आ रहे हो. When your bases and acid react with each other, it's kind of a neutralization reaction. So that's what I am seeing here. My NaOH, my sodium hydroxide aqueous, is going to react with this HCl, and see I'm proving it also, that how my bases are reacting with acid. देखो जरा क्या हो रहा है. NaOH में I have taken some drops of phenolphthalein indicator, और वो पिंक हो जाता है. We know it already. बेस में दे शो पिंक कलर. जैसे मैं एसिड की ड्रॉप डालती गई, they will show a neutralization reaction. I'm going to get NaCl with water. और आप देखोगे there will be one moment of time कि इसका जो कलर है वो कलरलेस हो जाएगा with that drop of an acid. वो कब होता है? When whole of your base is completely neutralized with the help of the acid taken. Neutralization reaction we can see so amazingly well here. So you'll remember that part also, how my bases react with acid. Now third and very much important property, it's something cool, and see that they precipitate as insoluble metal hydroxide. Means my bases can also precipitate out as insoluble metal hydroxide. What will I do? I'll take my heavy metal salt, I'll try to react with alkali, and वो जो heavy metal है उसके मुझे hydroxide मिल जाएंगे, and they'll settle down at the bottom in form of precipitate. कैसे? heavy metals के कुछ example लिए हैं, copper, iron and zinc type, but reaction कैसे होगा? बहुत easy है. देखो जरा इसको. As I told you, मैं heavy metal के salt ले रही हूँ. I've taken copper sulfate, zinc sulfate and iron sulfate, and I'm reacting it with my alkali. Nothing, none other than alkali. और alkali मतलब water soluble base. एक water soluble base था, उसमें मैंने एक metal salt को mix किया. जैसे ही मैं mix करती हूँ, I will see that one of a kind of a precipitate will settle down at the bottom. वो इसी metal का होगा. Reaction again कुछ नया नहीं है. decomposition, double decomposition we will see. Copper with hydroxide, copper hydroxide के pale blue precipitate मिलेंगे, और ये अमोनियम अब एक नया salt बना रहा है, अमोनियम सल्फेट. यानी कि I am going to get my salt of the alkali, और मेरा जो metal का salt था वो अब metal का hydroxide देगा. नया base बन रहा है with new kind of a precipitate. Again zinc hydroxide, gelatinous white precipitate मिलेंगे, double displacement reaction. Iron with OH, iron hydroxide, dirty green color के precipitate मिलेंगे. So this reaction is also clear how my alkali react with higher metal salt, which is pretty much
अंडरस्टैंडेबल। अब देखते हैं व्हाट विल हैपन व्हेन वी हीट इट विद अमोनियम सॉल्ट। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैम जब भी अमोनियम सॉल्ट की बात करेगी, वन ऑफ द एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, तो एक स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा इसमें से निकल सकता है, दैट इज अमोनिया. So when ammonium chloride react with your NaOH, and if you do remember from some of your previous classes what ammonium chloride is, it's kind of an acidic salt. उसको एक बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हो, acid base will definitely give you salt and water. But do remember it, जब अमोनियम क्लोराइड ले रहे हो, जैसा मैंने बताया, वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी डेफिनेटली अमोनिया, क्योंकि ये डिकम्पोज होगा टू गिव अमोनिया एंड HCl. HCl रिएक्ट करेगा NaOH के साथ टू गिव NaCl एंड वाटर, और वो NH3 बच जाएगा. I will get a very pungent and bad smell of ammonia out of the same. Okay, so थोड़ा ध्यान से करना एक्सपेरिमेंट को. Cool, salt water along with ammonia gas. Do remember this part also, that my insoluble bases do not affect the indicator. Why so? Because indicator कब अपना दिखाएंगे कलर, वो अपना कलर चेंजेस तब शो करते हैं when we'll take alkali water soluble base. अगर मेरा बेस जो है अल्कली नहीं है, वाटर सोल्यूबल नहीं है, इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम, इट वोंट रिएक्ट विद द इंडिकेटर. और अगर इंडिकेटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है टू गिव अ प्रॉपर कॉम्प्लेक्स, आई वोंट सी द कलर चेंजेस इन द सेम. So do remember it, it's very very important. And a new thing that we have learned, that my insoluble bases do not affect the indicator. Got it my students? I hope you got it. Chemical properties also super duper clear. Let's talk about general uses of some bases. और बहुत सारे uses तुम्हें already पता है. It's like inspired from your day to day life. Sodium hydroxide की बात करते हैं, none other than your NaOH. सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप बनाने में काम होता है. सबको पता है कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, नहाना बहुत ज़रूरी होता है, नहाने के लिए चाहिए सोप, राइट? सो यस, सोप इज नीडेड. और वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी अल्कली दोनों में से चूज कर सकते हैं. सो सोप फॉर्मेशन में वी यूज KOH ऑल्सो. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन सॉल्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ न्यूट्रल सॉल्ट बनाने में यूज करते हैं. एंड यूज्ड इन बैटरीज ऑल्सो. बहुत सारी बैटरीज होती है जो एक अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट को यूज करती है फॉर देयर प्रॉपर फंक्शन. बैटरी में होता क्या स्टूडेंट्स, ऑल द अरेंजमेंट लाइक कैथोड, एनोड, एंड दे विल टेक एन इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो. सो KOH को मैं एक बेसिक इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी यूज कर सकती हूँ इन सम ऑफ द बैटरीज. अमेजिंग. और बात करते हैं और क्या हो सकता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. मैम ये कैसे होता है, बिल्कुल शो करते हैं. When you take your calcium hydroxide and pass chlorine gas out of the same, that will give you CaOCl2 and H2O will be released. CaOCl2. Here you are going to left with 2H and 1 oxygen, so H2O. I got my bleaching powder out of the same. सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर ऑल्सो. अगर इसको आप हार्ड वाटर में मिक्स करोगे, हार्ड वाटर में आयॉन्स होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के. कौन से आयॉन्स? कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट, क्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड ऑल. तो ये उससे रिएक्ट करके कुछ इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बना के सेटल डाउन हो जाता है. नाउ यू फिल्टर दैट वाटर, ऑल ऑफ द हार्ड, यानी कि वो जो मिनरल्स थे हार्ड वाटर के अंदर, वो सब रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट आउट हो गए. अब मुझे जो पानी मिल रहा है वो सॉफ्ट होगा नेचर में, राइट? अमेजिंग. ये प्रॉपर्टी थी मेरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की. अब बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. स्टूडेंट्स डू रिमेंबर इट, वी डू कॉल इट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऑल्सो. इसका जो सोल्यूशन है उसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी बुलाते हैं. इजंट इट अमेजिंग? यस. एंड वी यूज इट and we use it as an antacid also. Antacid क्या होता है? एंटी एसिड. यानी कि ये एक बेस की तरह काम करता है, एक माइल्ड बेस की तरह. और जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी फील हो स्टमक में, यू नीड अ बेस लाइक जेलिसिल, डाइजीन एंड ऑल, दे पुट दिस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सोल्यूशन इन द सेम, और वो हम लेते हैं और वो एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है. ऑल राइट. सो एंटासिड का प्रॉपर्टी क्या है? सुपर डुपर क्लियर इन योर माइंड. अब बात करते हैं एक और बेस की. एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये काम करता है एज अ फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर.
फायर एक्सटिंग्विशर को जब प्रेस करते हो वो एक फोम देता है, राइट। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है, उस फोम को स्टेबलाइज रखना सो दैट द फायर कैन एक्सटिंग्विश। सेकेंड थिंग, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अगेन वो फोम के साथ आता है। वेन एवर यू प्रेस इट, जब भी आप वो फायर के ऊपर उसको डालते हो तो वो हीट होता है सब्सटेंस, और इसको हीट होने पे वो क्या बनाता है स्टूडेंट्स, एल्यूमिना एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज मेकिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड कॉल्ड एज एल्यूमिना, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है। अब वाटर मॉलिक्यूल का काम क्या है, दैट कैन एक्सटिंग्विश फायर, राइट, कि पानी आग को बुझाने के काम आता है। दैट्स व्हाट इट इज डूइंग। सो इजंट इट अमेजिंग कि ये कैसे यूज हो रहा है इन द केस ऑफ एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर ऑल्सो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम है, दैट कैन एक्ट एज एन विंडो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है, दैट एक्ट एज अ विंडो क्लीनर ऑल्सो। विंडो को जो क्लीन करने का वो जो सोल्यूशन यूज करते हो उसमें भी होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स। ऐसा क्यों, ये ग्रीस में डिजॉल्व हो जाता है। इट एक्ट एज a solvent for grease particle, वो उसमें मिक्स हो जाएंगे and it will come to the solution and your stain is gone, kind of weak kind of a bleach की तरह काम करता है वो। Amazing, right? मैग्नीशिया। अब ये देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा है, मेकिंग रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स क्या होती है, एक गुड क्वालिटी की ब्रिक्स होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फायर प्रूफिंग ब्रिक्स भी बोलते हैं इसको। तो इसमें बहुत सारा कंटेंट मिट्टी का होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मिट्टी यानी सिलिका SiO2, एलुमिना भी यूज़ करते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैग्नीशियम कंपाउंड्स भी यूज़ करते हैं, जिसमें से एक है मैग्नीशिया और यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बोलते हैं उसको। तो ये क्या है, उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत ज़्यादा फायर रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट होती है। सो दैट्स व्हाट द यूज। तो ज़्यादातर आजकल हम रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स यूज करने लगे हैं। ऑल राइट। कैल्शियम ऑक्साइड का काम क्या है स्टूडेंट्स, दैट एक्ट एज अ ड्राइंग एजेंट, मतलब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्ट एज अ बेसिक फ्लक्स ऑल्सो। बेसिक फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जब आप मेटलर्जी के बारे में याद करोगे, मेटलर्जी में क्या होता है, वी रियली नीड टू गेट रिड ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम माई ओर। उस मेथड को बोलते हैं एनरिचमेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। और वो जो इम्प्योरिटीज होती है उसको हम बोलते हैं गैंग पार्टिकल। गैंग पार्टिकल्स कौन होती है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट विद माई ओर। अब उसका नेचर कुछ भी हो सकता है, एसिडिक, बेसिक एंड ऑल। फ्लक्स वो सब्सटेंस है जो गैंग के साथ मिक्स करके कुछ नया सब्सटेंस बनाता है, जिसको हम बोलते हैं स्लैग। मोल्टन स्लैग, जब इसको हीट करते हैं टुगेदर, एक मोल्टन स्लैग बनके वो इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है। यानी कि अगर मेरा गैंग का नेचर एसिडिक है तो मुझे एक बेसिक फ्लक्स चाहिए ऑपोजिट प्रॉपर्टी का। एग्जाम्पल सिलिका, SiO2, मिट्टी है बहुत सारी, उसको मुझे हटाना है, आई विल यूज अ बेसिक फ्लक्स में कैल्शियम ऑक्साइड को यूज कर सकती हूँ। They react when we heated it enough in a furnace and that removed out in form of a molten slag, settles down. Wonderful. So I hope you understood what we have learned today. बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने, how to prepare bases, what kind of a physical properties they are having and what kind of a chemical properties they are having, like how they react with different chemicals to give new substances. I hope you will like the session and subscribe to the channel if you haven't done it yet, and definitely will share it with your friends so that they can come and see it. Look at this. Yes, अगले सेशन में सीखेंगे एक बहुत important topic, that is how to find out strengths of acid and bases, also how to find out the pH of solution also. And I am pretty sure that you are excited for that session also, because आप उसका wait कर रहे थे कि वो भी होगा। तो students don't worry, बहुत जल्दी होगा। I hope आपको आज का session बहुत अच्छे से समझ आ गया। Otherwise you can see on a replay mode also, I'm pretty sure you'll get it. So come to Vedantu and become a part of Vedantu and say that I'm a proud Vedan, because the education that we're trying to give is very important for all of you, and we're trying to give it with the minimum possible price and with all the best facilities that we can give. Select your grade, select your target, and then click on get subscription, क्योंकि subscription को दबाओगे you can choose your subscription for 1 month over here, 3 months and 6 months. 6 months best इसलिए है
दैट्स द टाइम लेफ्ट फॉर योर एग्जाम एंड अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो विद ऑल द मास्टर टीचर्स हियर, क्लास टीचर टू सॉल्व योर डाउट्स एंड ऑल द 6 सब्जेक्ट्स विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्या करना है, अनुभा मैम का कूपन कोड लगाना मत भूलना, दैट इज AGPRO, दैट विल गिव यू स्पेशल डिस्काउंट with the price given after discount of the situation. 2699 after code 2294. तो एक ट्रायल तो बनता है स्टूडेंट्स, दैट हाउ थिंग्स वर्क हियर. बहुत अमेजिंग तरीके से काम करते हैं. 3 मंथ्स के लिए 6999 आफ्टर डिस्काउंट, AGPRO के बाद 5949, यानी कि यू आर गोइंग टू पे 1983 रुपीज पर मंथ. सबसे बेस्ट जैसे बताया 6 मंथ्स का the price was already 11,499. After AGPRO discount you will get it in 9774, यानी कि you're going to pay 1629 rupees per month for 30 days, which is like a best deal to grab. I hope you will do it. So this is the link that you all have to visit and you all have to apply the coupon code AGPRO. बहुत ज़रूरी है. एंड ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फॉर ऑल योर लव अफेक्शन दैट वी ऑल नीड फॉर द सेम. आई नो कभी कभी चीज़ें हो जाती है, सो वी कैन फॉरगेट बिकॉज ऑफ ऑल द सिचुएशन, बट वील ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट इन ऑल द पॉसिबल वे. So please like the video, share it to your friends and subscribe to the channel if you haven't done it till yet. You can reach out to me on my email ID, that's anubha.gaur@vedantu.com. We'll keep on meeting with the same way, with the same josh and energy. And I'll meet you soon. Till then, take care of yourself. Bye bye. Please stay at home and do revise with Vedantu. Do check all the playlist. Bye bye, students.